Hello dear students, today's lecture number 10. Today's topic is stoichiometry and stoichiometric calculation. So let us discuss this point details. What is the meaning of stoichiometry and what is the meaning of stoichiometric calculation? Today's topic is stoichiometry and stoichiometric calculation. Metric calculations. So before discussing the theory of this part or numericals based on this, so first you should know what is the meaning of stoichiometric calculation. So let us take one simple example. Example is, let us consider the formation of water molecule from hydrogen and oxygen. So this is one balanced chemical equation. So in this balanced chemical equation, stoichiometric coefficients. What is the meaning of stoichiometric coefficient? See here, the stoichiometric coefficient of hydrogen with respect to hydrogen 1, with respect to oxygen 1, with respect to water 2. Again listen, what is the meaning of stoichiometric coefficient? The stoichiometric coefficient, these are the numbers which we have to write before the formula of the reactants and products molecule in order to balance a chemical reaction. एक chemical reaction को balance करने के लिए reactant and product molecule के formula के आगे जो हम number लिखते हैं, तो this numbers are called stoichiometric calculation, sorry, stoichiometric coefficients. तो नेक्स्ट पार्ट हमको डिस्कस करना है, व्हाट इज स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन. ये क्या बोला देखो, द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगेन लिसन, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन मीनिंग इज, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड ऑन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम जो जो कैलकुलेट करेंगे तो उसी कैलकुलेशन का नाम ही है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन. तो इसको हम ऐसे रखते हैं यहाँ, व्हाट इज स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है ये. तो नेक्स्ट पार्ट हमको डिस्कस करना है, व्हाट इंफॉर्मेशंस विल यू गेट फ्रॉम ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन. एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन विल यू गेट. तो इंफॉर्मेशन क्या बोला देखो, नेक्स्ट हम लिखेंगे informations from a balanced chemical equation. Information from a balanced chemical equation. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन विल यू गेट, तो वो क्या बोला है, सी हियर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ए balanced chemical equation gives quantitative relationship between the reactants and products in terms of number of moles, number of molecules, volume of gaseous reactants and products
volume of gaseous reactants and products, mass etc. तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो क्या इंफॉर्मेशन देगा. द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विल गिव द इंफॉर्मेशन. एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के साथ नंबर ऑफ मोल का क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की क्या रिलेशन है, वॉल्यूम ऑफ गैस. अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल गैसियस है तो अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बीच में वॉल्यूम रिलेशन क्या होगा या मास रिलेशन क्या होगा. देखो ऑल दिस इंफॉर्मेशन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विल गिव. So let us take one example. The example के लिए go into the next page. Let us take one example. Example is suppose nitrogen gas reacting with hydrogen gas after reaction 2NH3 gas. This will form. तो now यहाँ से देखो क्या क्या हमने information you will get. This one first one number of moles. Number of mole के हिसाब से this is 1, this is 3, this is 2. तो नंबर ऑफ मोल के हिसाब से देखो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमको यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन completely reacts with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन. आफ्टर रिएक्शन गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. तो नंबर ऑफ मोल के हिसाब से हमने ये रिलेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का बीच में दिस रिलेशन यू विल गेट. नेक्स्ट हम देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एट एसटीपी. तो यहाँ देखो एक मोल में कितना है एवोगाड्रोस नंबर, 3 मोल में कितना होगा 3 इंटू एन ए मोलिकुल्स, यहाँ 2 मोल में 2 इंटू एन ए मोलिकुल्स. तो अगेन लिसन नंबर ऑफ मोलिकुल्स में यही इंफॉर्मेशन दे रहा है. At STP Na molecules of nitrogen reacts with 3 Na molecule of hydrogen. After reaction 2 Na molecules of ammonia will form. तो नेक्स्ट हम लेंगे वॉल्यूम. वॉल्यूम एट STP. तो वॉल्यूम फॉर्म में हमको यही मिल रहा है 22.4 लीटर. इन केस ऑफ हाइड्रोजन 3 इंटू 22.4 लीटर, यार 2 इंटू 22.4 लीटर. देखो वॉल्यूम फॉर्म में हमको यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एट STP 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम है 22.4 लीटर. तो 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स completely with 3 into 22.4 liter of hydrogen. After reaction gives 2 into 22.4 liter of ammonia molecules form. तो नेक्स्ट लाइन हम डिस्कस करेंगे. देखो मास. तो मास के लिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मीनिंग मास है 28 ग्राम मोलिकुलर मास. 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 3 into 2 ग्राम. 2 मोल्स ऑफ एमोनिया मीनिंग इज 2 into 17 ग्राम. तो मास के हिसाब से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 28 ग्राम of nitrogen reacts completely with 6 gram of hydrogen. After reaction give 34 gram of ammonia after reaction. So this information you will get from a balanced chemical equation. Again listen, actually balanced chemical equation से हमको क्या क्या information हमें मिलेगा. तो यही बोलना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको क्लियर कट रिलेशनशिप दे रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वन रिएक्टेंट रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ अनदर वन. आफ्टर रिएक्शन हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. बाकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, मास, दिस इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया है. दिस आर द इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो नेक्स्ट पार्ट हमको टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट हमको डिस्कस करना है द लिमिटिंग रिएजेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट LR. तो लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या है. सी है in a balanced chemical equation or in a chemical reaction, limiting reagent meaning is the reagent which is completely consumed in a chemical reaction.
फर्स्ट थिंग देखो, द रिएक्टेंट, जिस रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज्ड होगा उसी रिएक्टेंट को बोलते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट। तो सेकेंड लाइन हम क्या लिखेंगे, amount of product form depends on the amount of limiting reagent LR। देखो कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट है। द रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट जो है देखो उसके अमाउंट के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो याद रखो, हमने जब अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करेंगे, एक्सेस रिएजेंट नहीं। तो नाउ व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट यू हैव गॉट। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है न्यूमेरिकली हाउ विल यू आइडेंटिफाई। अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तुम्हें तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके लिए मेथड क्या है देखो, लेट अस डिस्कस दैट पार्ट। तुम लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। द क्वेश्चन इज 2 moles of nitrogen are allowed to react with 8 moles of hydrogen in a closed vessel, full stop। Sorry, full stop का मतलब closed vessel according to the reaction nitrogen plus 3 hydrogen after reaction 2 NH3 will form, full stop। अभी क्वेश्चन है नंबर 1, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करो। सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द mass of NH3 formed। So after reaction, how many gram of NH3 will form? So this thing you have to calculate the mass of NH3 formed। तो now let us solve this numerical। ये क्वेश्चन एक बार ठीक ठाक से देखो क्या बोला है, 2 moles of nitrogen N2 are allowed to react with 8 moles of hydrogen in a closed vessel according to the reaction is given। After that बोला identify the limiting reagent। Second question, calculate the mass of NH3 formed। So now let us come to the solution of this question। The limiting reagent identification के लिए very short method see here solution। तो nitrogen gas plus 3 hydrogen gas, तो after reaction 2 NH3। तो हम दो लाइन में हम लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए सी हियर, फर्स्ट वन इज गिवन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, नाइट्रोजन के लिए कितना दिया है 2, हाइड्रोजन के लिए गिवन है 8। तो ये गिवन नंबर ऑफ मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो नाइट्रोजन के आगे कौन सा नंबर है कुछ लिखा नहीं मतलब 1 है, तो गिवन नंबर ऑफ मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट से डिवाइड करो। तो 8 को डिवाइड करो बाय 3, तो आफ्टर डिवीजन यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ आएगा 2.67। तो किसके लिए ये रेशियो का वैल्यू किसके लिए कम है, नाइट्रोजन के लिए कम है। सो नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हियर लिमिटिंग रिएजेंट LR इज नाइट्रोजन। तो राइट हैंड साइड में हम ये मेथड लिख देते हैं, मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट LR। तो ये मेथड क्या है देखो, वेरी सिंपल मेथड क्या है, स्मॉल r इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स divided by stoichiometric coefficient।
स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसका स्मॉल आर नाम दिया है, रेशियो आर। तो उत्तर देते हम क्या बोलेंगे, द reactant who is R value is minimum is the limiting reagent। अगेन लिसन, जिस रिएक्टेंट के R वैल्यू मिनिमम है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। तो नाउ कम टू दिस एग्जांपल जो हमने आज डिस्कस किया है। देखो तो हमने वही किया है, नाइट्रोजन के गिवन नंबर ऑफ मोल कितना था 2, हाइड्रोजन के था 8। तो नाइट्रोजन की स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था 1 से डिवाइड किया हमने। हाइड्रोजन की स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3। तो गिवन नंबर ऑफ मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमने डिवाइड किया है। आफ्टर डिवीजन नाइट्रोजन के लिए 2 मिला है, हाइड्रोजन के लिए 2.67। तो जिस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल के आर वैल्यू मिनिमम है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी शॉर्टकट मेथड। तो यह नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये नंबर 1 हो गया। तो नाउ कम टू द नंबर 2। हमने पहले बोला है द लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड हाउ मेनी ग्राम और हाउ मेनी मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये जो रिएक्शन हमने लिखा है इसको नंबर 1 दिया है। सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1। तो ये जो रिएक्शन 1 है, देखो तो रिएक्शन 1 हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये रिएक्शन 1 कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो क्वेश्चन में नाइट्रोजन दिया हुआ है 2 मोल्स, तो 2 मोल्स के लिए कितना आएगा हम कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 gives 2 moles of ammonia. Therefore, 2 moles of nitrogen will give 4 moles of NH3। पहले हमने कैलकुलेट किया है, after with the help of limiting reagent हमने we have calculated after reaction how many moles of ammonia will form। तो हमारा आंसर है 4 moles। जो 4 moles है, नेक्स्ट कम टू द लाइन। तो मास ऑफ 4 moles of NH3 equal to 4 into 17 gram equal to 68 gram। So this is the answer of second question। This is the answer of second question। So next, based on the same pattern, let us take another numericals। Let us take another numericals। तो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 2। 2 moles of A and 3 moles of B are allowed to react according to the following reaction। According to the following reaction, the reaction is 2A plus B after reaction C plus D। ये है हमारा केमिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन एक है। तो नाउ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। नंबर 2, calculate the mass of excess reagent left after reaction। इस पर क्वेश्चन स्लाइड डिफरेंट। तो फर्स्ट थिंग क्या बोला है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड थिंग क्या बोला है, द एक्सेस रिएजेंट जो है वो आफ्टर रिएक्शन कुछ ना कुछ उसका अमाउंट एक्सेस रहेगा। तो हाउ मेनी मोल्स, सॉरी मास नहीं मोल्स लिखो यहाँ, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन।
Now come to the solution of this question. Solution. The solution के लिए see here 2a plus b एरो देख के c plus d. तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में एक बार देखो. a दिया है 2 मोल, b 3 मोल. तो गिवन नंबर ऑफ a 2 b 3. तो अभी इसको डिवाइड करो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बाय 2 बाय 1. आफ्टर डिवीजन देखो तो क्या आ रहा है. तो हमने ये स्मॉल r कैलकुलेट किया है. हाँ, स्मॉल r इक्वल टू, तो दिस इज 1, दिस इज 3. देखो तो कौन सा रिएक्टेंट के लिए r का वैल्यू मिनिमम है. तो रिएक्टेंट a, so a is the limiting reagent. Number 1 limiting reagent equal to a. तो नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है, इसका नाम हमने 1 दिया है. b एक्सेस रिएजेंट है, तो आफ्टर रिएक्शन हाउ मेनी मोल्स ऑफ b विल लेफ्ट, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो नंबर 2 के लिए नंबर 2 का सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, 2 moles of A reacted with 1 mole of B. तो A लिमिटिंग रिएजेंट है, तो A का 2 मोल दिया है, तो 2 moles of A reacted with 1 moles of B. तो B कितना मोल दिया है देखो तो 3 दिया हुआ है, मीनिंग इज आउट ऑफ दिस 3 1 मोल रिएक्टेड है. तो लेफ्ट कितना होगा. सो मोल्स ऑफ B लेफ्ट इक्वल टू इनिशियल मोल माइनस मोल रिएक्टेड. अगेन जैसे गिवन मोल ऑफ B 3 दिया था, तो कितना मोल रिएक्ट किया है. आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिल गया कि 1 मोल रिएक्टेड है. तो लेफ्ट कितना होगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 मोल्स. तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर. तो बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर देखो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है. तो अभी हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन. नेक्स्ट सी हियर टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन. टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन. टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन तो हमें डिस्कस करेंगे यहाँ. मेनली 3 टाइप्स स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, मेनली 3 टाइप्स. नंबर 1 मास रिलेशनशिप. तो फर्स्ट केस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देखो हमने सिर्फ मास फॉर्म में कंपेयर करेंगे, तो मास उसका नाम है मास रिलेशनशिप. सेकेंड वन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. तो सेकेंड कैटेगरी में जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, सपोज रिएक्टेंट को हमने मास फॉर्म में रखा है एंड प्रोडक्ट को वॉल्यूम फॉर्म में रखा है, तो मास एंड वॉल्यूम को बैलेंस केमिकल को इक्वेशन के हिसाब से हम उनको कोरिलेट करेंगे. तो उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसका नाम है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. तो नंबर 3 वॉल्यूम रिलेशनशिप. तो नंबर 3 में हम क्या करेंगे देखो, एक के वॉल्यूम दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, रिएक्टेंट का वॉल्यूम प्रोडक्ट के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके वॉल्यूम रिलेशनशिप. तो नाउ वी वांट टू डिस्कस डिटेल्स अबाउट दिस 3. ये तीनों के ऊपर देखो डिटेल्स दो तीन न्यूमेरिकल देख के देखो वी वांट टू डिस्कस. तो बिफोर न्यूमेरिकल सॉल्विंग और न्यूमेरिकल्स, तो फर्स्ट नोट देख के एक्स्ट्रा पार्ट ध्यान लिख के रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो नंबर 1 combustion reaction of hydrocarbons. Combustion reaction of hydrocarbons. The combustion of reaction of hydrocarbon हमने क्या लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जनरल बैलेंस केमिकल इक्वेशन CXHY. तो X प्लस Y by 4
into O2. After reaction, X CO2 plus Y by 2 H2O. So this is the balanced chemical equation for combustion of hydrocarbon. चाहे वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, एल्केन या एल्कीन, एल्काइन, जो भी हो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा? दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. हमने क्या लिखेंगे? व्हेन x and y are whole number, meaning is positive integer, whole number x and y. तो लेट अस टेक वन एग्जांपल. किसी का प्रॉब्लम हो सकता है एक्चुअली ये है क्या, तो एक एग्जांपल. लेट अस टेक वन एग्जांपल. मीथेन. देखो तो ये मीथेन मॉलिक्यूल कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो. तो हियर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4. तो इसके कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? या 1 लिखो, 1 प्लस 4/4, 1 प्लस 4/4 O2. तो आफ्टर रिएक्शन ये x का वैल्यू 1 है तो CO2 प्लस y 4 है तो 4/2. यहाँ इसके साथ कंपेयर करो, 4/2 मीनिंग इज 2H2O. तो ये देखो पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल गया. तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? CH4 प्लस 2O2, एरो देखिए, CO2 प्लस 2H2O. दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये. तो इसी तरह कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है तो उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? तो यू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन इजीली find out what is the balanced chemical equation for combustion of the given hydrocarbons. For combustion of the given hydrocarbon. So next, number 2, derivatives of number 2, combustion reaction of derivatives of hydrocarbons. Derivatives of hydrocarbons. तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मीनिंग इज क्या क्या है? देखो, अल्कोहल है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, एमाइन भी हो सकता है. तो फर्स्ट नंबर 1, CXHYOZ प्लस, मानो कि उस हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन X प्लस Y/4 माइनस Z/2 O2. The after reaction XCO2 plus Y/2 H2. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जहाँ में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है. मीनिंग इस वो अल्कोहल भी हो सकता है, इथार भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है. उसका कॉम्बस्शन जो जनरल इक्वेशन क्या होगा? देखो हमने लिखा है ये, जहाँ एक्स वाई जेड जो है, देखो ये पॉजिटिव होल नंबर है. where x, y and z are whole numbers. So this is our equation. तो let us take one example. इसी के कैटेगरी में देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं. Let us take one example of this. Example. मानो कि C3H6O. यहाँ x, y and z का वैल्यू you have got. C3H6O. तो C3H6O जो है, इसके बाद देखो यहाँ x का वैल्यू कितना है? 3 है, y का वैल्यू 6 है, 6/4 माइनस z इक्वल टू 1, 1/2 O2. एरो देखिए, 3CO2 प्लस, तो ये 3H2. बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से देखो ये मिल गया हमें जो हमने जनरल दिया था. तो नाउ C3H6O प्लस, यहाँ सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है? तो ये 3/2 मीनिंग इज 1.5. तो 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया तो 1, तो 4O2. आफ्टर रिएक्शन 3CO2 प्लस 3H2O.
8 9 6 + 3 9, हाँ पूरा बैलेंस हो गया। तो ये है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए। तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए ये है। तो नाउ हम दो सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसी सब रिएक्शन के ऊपर। तो नाउ कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन, ये नंबर 1 देके लिखते हैं, बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप। तो पहला टाइप के ऊपर देखो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे मास रिलेशनशिप। तो मास रिलेशनशिप में सी हियर, तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेके हम शुरू करेंगे। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द mass of CO2 formed by complete combustion of 48 gram of methane CH4. Again listen, 48 gram of CH4 is given to you. 48 ग्राम का मीथेन का कंप्लीट कंबशन किया है। आफ्टर कंबशन हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, दिस थिंग वी हैव टू कैलकुलेट। तो कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन CH4 plus 2O2 आफ्टर रिएक्शन CO2 plus 2H2O। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखो नीचे अगर मास लिखेंगे तो दिस इज 16 ग्राम। तो 1 मोल मीथेन मीनिंग इज 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन आफ्टर रिएक्शन गिविंग 1 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल ऑफ CO2 मीनिंग इज 44 ग्राम। तो 16 ग्राम is giving 44 gram. So 48 gram of methane will give 44 by 16 into 48 gram of CO2 इक्वल टू, इसको कर देते हैं 3 से। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 12 13 132 gram of CO2. So this is the answer. After reaction, how many gram of carbon dioxide will form? So this is the answer. Now let us take the second numerical based on this mass relationship. Question number 2. Question number 2 given. Ten gram of an impure sample of calcium carbonate on heating gives 2.2 gram of CO2 carbon dioxide. Full stop. Calculate the percentage purity of CaCO3 sample. Again see the question. First क्या बोला है देखो, the calcium carbonate meaning is limestone. तो एक impure sample है, 10 ग्राम is given to you. उसी 10 ग्राम का हमने ऑन हीट किया है। देखो आफ्टर हीटिंग वो डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, उसी कार्बन डाइऑक्साइड के मास है 2.2 ग्राम। तो अगर 2.2 ग्राम ऑफ CO2 मिला है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। द परसेंटेज प्योरिटी के लिए सी हियर, come to the solution of this question. The solution of this question, see, solution
The calcium carbonate solid on heating, this is solid as calcium carbonate solid as on heating calcium oxide solid plus carbon dioxide गैस। तो ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, आफ्टर रिएक्शन 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 के मास 44 ग्राम। तो बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन नाउ वी कैन राइट 44 ग्राम ऑफ CO2 obtained from 100 gram of CaCO3. Again listen, 44 gram of CO2 obtained from 100 gram of CaCO3. Therefore क्वेश्चन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम of CO2 obtained from, कैलकुलेट करो 100 by 44 into 2.2 ग्राम of CaCO3। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से मिल जाएगा 10 हो जाएगा 2 तो इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ CaCO3। लिसन नाउ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मास मिला है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसी मास के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। तो वो इम्प्योर सैंपल में ओनली कैल्शियम कार्बोनेट 5 ग्राम है, तो रिमेनिंग इज टोटल मास दिया था 10 ग्राम। तो रिमेनिंग मास इज द मास ऑफ इम्प्यूरिटी, मीनिंग इज जो भी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है वो रिमेनिंग मास 5 ग्राम है। 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 5 ग्राम इम्प्यूरिटी सब मिला के 10 ग्राम था। तो नाउ सी द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज प्यूरिटी। Percentage purity of CaCO3 sample equal to mass of pure CaCO3 divided by mass of impure sample into 100। ये है परसेंटेज प्यूरिटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला। तो अभी वैल्यू पुट करो, द प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम मिला है हमने 5 ग्राम आफ्टर कैलकुलेशन। इम्प्योर सैंपल का मास कितने दिया 10 इंटू 100 इक्वल टू 50%। तो यही आंसर, मीनिंग उस इम्प्योर सैंपल के देखो परसेंटेज प्यूरिटी जो है 50% परसेंटेज प्यूरिटी है। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर और एक लेक्चर होगी, तो जिस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर और एक लेक्चर होगा। तो आज के लेक्चर का हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, ठीक है, बाय।